topic, which is the resiliency pattern. What do you mean by resiliency pattern? Any idea? Any idea? Anyone want to try? So resiliency pattern is everything is good whenever your service is up, service is fine, but how you can make sure two to three things, right? First thing, how you can make sure when your service is not responding, okay, there is something happened to the service, right? Now your service is failed. Service A wants to call service B, service B is failed. All instance of service B is showing some error, right? Okay, or that specific method which you are trying to call, specific API or API will call to the next, right, service, right? This is having some problem. So what will you do in that scenario, right? How you can make sure that if I'm having some problem in a continuous method and service A should not call it repeatedly. I realize okay I am having a problem, so I'll at least protect my resource or protect my CPU or memory, whatever you can think, because service B might be, you know, running in some server, right? There is some memory, right? If you continuously call a failed service, what it will happen? It will consume the resource. It will consume lots of memory, right? All the exception, right? If it is a infinite loop, then it will, crash the whole JVM. We might have the same host operating system. We might have multiple system, right? How to protect the resource? One thing. Second thing, someone is trying to hack your, service, right? You want to limit their rate, right? You know your business, you know that on a expected real expected date I can expect that 1 second I might get maximum 50 requests, but someone want to hang your services. Someone want to they just run some test suit and they are hitting your API. You are on working in a public API domain, right? They are hitting your API with 1,000 thread. What will you do? Right? Do you have control over that? How to make a control over that? Right? Third thing, bulkhead pattern. Bulkhead is very important because okay, let me give you the idea that where the bulkhead came. किसी को आइडिया है जहाज कैसे बनते हैं? Anyone by default know anyhow the जहाज कैसे बनते हैं? मतलब what I'm trying to say, जहाज का एक प्रिंसिपल होता है. Who is making or building the जहाज? Means I'm talking about the ship, not the which is जो सी में चलता है, राइट? सीप कैसे बनता है? क्योंकि सीप का एक प्रिंसिपल होता है कि आप बहुत सारे मूवी में देखते हो आई थिंक. एक एक प्रॉब्लम है कि देखो तो जहाज के यहाँ तक कंपार्टमेंट होता है एंड कंपार्टमेंट इतना आइसोलेटेड होता है कि अगर एक जगह पे पानी घुस गया तो दैट डजंट मीन दैट आपका उसी एरिया में पानी कन्फाइंड रहेगा. ऐसा नहीं कि पूरा जहाज में फैल जाएगा, राइट? So if you can think your ship is a consist of multiple small component and each component in isolatedly separated or it is isolated. Okay, so any leak happen on one component will not impact the another component. ठीक है? Okay, so what do you mean by that? We are trying to say that the same thing. आपके पास थ्रेड लिमिट है, राइट? आप क्या करोगे? आप अगर कोई सर्विस ए इज ट्राइंग टू कॉल सर्विस बी, राइट? सर्विस ए से जब कॉल करोगे तब आप क्या करोगे? सर्विस ए का जो भी सर्विस ए के ऊपर जो एपीआई कॉल कर रहा है वहाँ से आप सेम थ्रेड को यूज़ कर रहे हो, सेम थ्रेड को आप सर्विस बी को एक्सपोज कर रहे हो. सो सर्विस ए का जो जितना भी थ्रेड है उसका जो स्टेट्स है, यू आर टेकिंग वन थ्रेड और यू आर टेकिंग रनिंग द थ्रेड, right? Using that thread and that thread you are calling to service B.
and if something wrong happen in service B call, your thread is getting impacted, right? So next caller जो आएगा उसके लिए impacted होगा. उससे अच्छा ऐसा क्यों नहीं करते, सर्विस बी को कॉल करने के लिए हम एक थ्रेड पूल बना के रखते हैं, 5 थ्रेड का पूल बना के रखते हैं. जब भी सर्विस बी का कॉल आएगा, मेन थ्रेड से मैं डेलीकेट कर दूंगा वो जो थ्रेड पूल के जो थ्रेड है. सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग, दैट विल बी इम्पैक्टेड, दोज थ्रेड पूल विल बी इम्पैक्टेड, और जो भी थ्रेड उस थ्रेड पूल में वो इम्पैक्टेड होगा, नॉट माई मेन थ्रेड विल नॉट बी इम्पैक्टेड. सेम पैटर्न, bulkhead pattern we call it. Okay. Fallback pattern. What is that fallback pattern? If something goes wrong, do I have a recovery thing? Means I can do something. I can say at least a कि मेरे एक्सेप्शन हो जाएगा. ऐसा मैं कर सकता हूँ कि मैं सिंपल एक चीज़ मैसेज में दिखा दूंगा कि वी आर फेलिंग टाइम आउट और समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज वेट आफ्टर सम टाइम. फॉल बैक, right? I know that in that time my service will be up, right? This is the resiliency pattern. If you can see, it is mentioned here, circuit breaker pattern ensure that a service client does not repeatedly call a failing services. Instead, a circuit breaker fail first to protect the client. Okay, first thing. Service and above, the service client caches microservice endpoint retrieved from the service discovery and ensure that service caller load balance between instances. So client side load balancing we already discussed, not an issue. Fallback, when the client does fail, is there an alternative path the client can take to retrieve data from or take an action with? Bulkhead, how do you segregate different service call on a client to make sure one misbehaving service does not take up all your resources on the client? I was just mentioning that, right? What is a bulkhead pattern? आप मेन थ्रेड को कभी भी यूज़ मत करो, ठीक है. यहाँ पे स्लाइड में लिखा है नेटफ्लिक्स रिबन, भूल जाओ नेटफ्लिक्स हिस्ट्रिक्स, नेटफ्लिक्स हिस्ट्रिक्स. ये स्लाइड का जो जब मैंने बनाया था तब मैंने सोचा था कि हिस्ट्रिक्स विल बी आवर सर्किट ब्रेकर, बट लेटर आई रियलाइज दैट हिस्ट्रिक्स इज नॉट good enough. And I talked to, frankly speaking, I was in a conversation with one of my friend who is working in Amazon. I called him and I उसको मैंने बोला कि तुम लोग क्या यूज़ करते हो. So he told me that we are not using Histrix because Histrix has some problem. It is very वही blocking आया का problem है. Okay. And he told me that you can use the resilience 4J. This is the new thing, right? Then I understood that okay, this is the resilience 4J is a open source library which is built to do this all this thing, right? Now I'll go into details that how to do this thing, but on a high level idea, you understood why you need the resilience pattern. Yes, ठीक है. ओके, नाउ रेजिलियंस पैटर्न कैसे कैसे काम करता है देखते हैं. सो फर्स्ट थिंग, एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटेक्टिंग रिमोट रिसोर्सेज सर्विसेज क्लाइंट फ्रॉम आउटसाइड. सो वट एवर आई जस्ट टोल्ड यू, राइट, यहाँ पे रेजिलियंसी 4J वही करते. फेल फास्ट मतलब क्या होता है कि आप अगर कहीं पे रियलाइज करते हो बेस्ड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन, जब तक मैं कॉन्फ़िगरेशन या एक बार एप्लीकेशन को नहीं दिखाऊंगा तब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होता है कि कैसे ये काम करता है. बट स्टिल वेट फॉर दैट टाइम, right? But I'll just try to tell you, it might be a story, but believe that story that it will happen, ठीक है. And I'll definitely show you that how it is happening. It might be looks like that. ऐसा होता है क्या, मतलब ये होता है क्या, होता है मैं बताता हूँ. पहली बात ऐसा है कि एक सर्विस A is trying to call a service B. Instead of directly calling, you might wrap that call or you might mention that it should use the circuit breaker. व्हाट डू मीन बाय सर्किट ब्रेकर, की सर्विस ए से सर्विस बी तक कॉल करने के टाइम अगर 5 बार कॉल करते हो, उसमें से 3 बार अगर फेल हो जाता है तो आप क्या करो, आप एक MCB स्विच की तरह काम करो. आप सर्किट को ओपन कर दो. ओपन मतलब क्या, आप नेक्स्ट टाइम जब सर्विस ए से सर्विस बी को कॉल जाएगा, यू विल नॉट अलाउ दैट कॉल. ओके, क्या बोला मैंने, बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि मेरे को एक टाइम विंडो चूज करना है या एक काउंट विंडो चूज करना है कि मैं 10 सर्विस का एक काउंट विंडो लेता हूँ.
राइट। मैं मेरा सर्किट ब्रेकर 10 सर्विस के बीच में काम करेगा। 10 में से मिनिमम 3 सर्विस रन होने के बाद if I see that 50% service are failing, okay, I will open the switch. स्विच को ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, सर्विस ए से सर्विस बी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दैट इज द फेल फर्स्ट अप्रोच। इन केस ऑफ रिमोट सर्विस डिग्रेडेशन, एप्लीकेशन विल fail first and prevent resource exhaustion. Fail gracefully. By failing first, this pattern gives the client application to fail gracefully to seek the alternative mechanism. अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सेप्शन सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया, आई कैंट रीच फ्रॉम सर्विस ए टू सर्विस बी, तो मैं उस टाइम पे कुछ फॉल बैक ऑप्शन दे सकता हूँ। सो आई कैन गिव दैट फॉल बैक ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, चलो मेरा वो इंटरमिनेंट था, मतलब कुछ सेकंड के लिए वो गया था, बट कुछ सेकंड में वो फिर ऑफ हो गया, दूसरा कुछ चीज़ के लिए है। पर सर्किट को क्लोज कौन करेगा? सर्किट ओपन हो गया बट क्लोज कौन करेगा? मैनुअली कोई जाकर सर्किट को क्लोज करेगा, बोलेगा कि चलो यार क्लोज कर दो, अभी तुम फिर से सर्विस ऐसे सर्विस भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। नो, it should recover seamlessly. Circuit breaker can check the service status once it is recovered. Traffic can be routed without human intervention. ठीक है, ये कैसे होता है? Just wait for 2 more minutes, I'll explain. Let's see that what are other things which the Resonance 4J is trying. Retry option, it can retry in case of failure of certain times. Rate limit, it can limit the calling rate per times unit for a specific service. आप रेजोनेंसी 4G में कॉन्फ़िगर कर सकते हो कौन सा एक्सेप्शन को आप एक्सेप्ट करोगे, कौन सा एक्सेप्शन को आप इग्नोर कर सकते हो। यू आर नॉट मार्किंग एज ए फेलियर और यू आर नॉट मार्किंग एज ए सक्सेस। ओके, किसको इग्नोर करना है, किसको सक्सेस मानना है, किसको फेल मानना है, यू कैन एवरीथिंग यू कैन कॉन्फ़िगर इन दिस रेजोनेंसी 4G। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वर्क फ्लो ऑफ द सर्किट ब्रेकर। ये जो पिक्चर है, पिक्चर को ध्यान से देखो। घर में जब सबकी जगह पे एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर काम करता है ना, सो व्हाट इट डज, इट विल बी ऑलवेज क्लोज्ड व्हेन सम एक्स्ट्रा फ्लो विल कम, मतलब एक्स्ट्रा करंट जब आएगा तब वो ओपन हो जाएगा, टिप ओपन हो जाता है, राइट। फिर इसको मैनुअली जाके क्लोज करना पड़ता है। ये कैसे काम करता है देखो। इनिशियली सर्किट ब्रेकर विल बी क्लोज, सर्किट विल बी क्लोज in case of timeout exception occurred above threshold. In case of timeout or exception occurred above threshold, circuit will be open. अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया कि वही सेम चीज़ है कि आपका या तो कुछ एक्सेप्शन आया या कुछ टाइम आउट हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, आपका थ्रेशोल्ड एंड दैट इज अबव थ्रेशोल्ड, राइट, योर सर्किट विल बी ओपन। आपका सर्किट ओपन हो गया। सो नेक्स्ट टाइम कोई कॉल करेगा तो क्या उसको एक्सेप्शन आएगा कि कॉल नॉट परमिटेड। ओके, नाउ अभी जो सर्किट ब्रेकर है ये एक फाइनाइट स्टेट मशीन की तरह काम करता है। ऐसा नहीं कि ओपन हो गया तो पूरा टाइम ओपन रखेगा, रिकवर कैसे होगा वहाँ से। वो क्या करता है, इट हैज़ ए स्टेट कॉल हाफ ओपन। हाफ ओपन में क्या रहता है कि वो जब क्लोज से ओपन होगा, ओपन में ऐसा नहीं कि पूरा टाइम तक रह जाए, कुछ सेकंड वो ओपन में वेट करेगा। यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर दैट सेकंड कि कितना टाइम आपको ओपन में कॉन्फ़िगर रहना है। फिर आफ्टर दैट इट विल मूव टू द हाफ ओपन। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ ओपन? आधा खुला है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक को भेज के देख लो कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। यू कैन कॉन्फ़िगर दैट नंबर कि हाफ ओपन स्टेट में कितना कॉल अलाउड है, ठीक है। एंड आप ऐसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो कॉल कभी भी आएगा, नहीं भी आ सकता है, थोड़ा टाइम कॉल नहीं आ रहा है तो आपका तो स्विच इधर पड़े रह जाएगा। इसीलिए एक टाइम आउट भी देते हैं कि मैक्स टाइम आउट हाफ ओपन में कितना टाइम रह सकते हैं। एंड उसमें वो जो कॉन्फ़िगर नंबर ऑफ कॉल्स यू आर अलाउड इन हाफ ओपन, उसमें से देखेगा कि उसमें कितना कॉल एक्सेप्शन आया कि टाइम आउट हुआ। वो अगर वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट आपने सेट किया था 50% शुड बी 50%, सो 50% से अगर ज़्यादा कॉल सक्सेस हो रहा है तो वो क्लोज स्टेट में चला जाएगा। अगर फिर से 50% से डिग्रेड हो गया तो इट विल अगेन गो टू द ओपन स्टेट एंड इट विल गो ऑन, ये चलता ही रहेगा। Okay, this is the life cycle of a circuit breaker. It will start from the closed state, it will go to open state, it will wait some time in open state, it will go to half open state, it will allow few services, right, service call.
Out of this, it will again do a statistics that okay, if it is meeting the threshold or not. If it is meeting the threshold, then that is fine. Means your success rate is above the threshold, or your failure rate is below the threshold, then it will go to the closed state. If your failure rate is above the threshold, then it will again make it open. फिर से ओपन में जाएगा, कुछ टाइम वेट करेगा, फिर से हाफ ओपन में आएगा, कुछ अलाउ करेगा, ऐसा चलता रहेगा. ओके, फाइन कि नो? आया समझ में? कैन यू डू ए प्रैक्टिकल? कर सकते इसको टेस्ट करेंगे तभी समझ में आएगा. और राइट, ठीक है, इसी को टेस्ट करते हैं. बाकी जो चीज़ें उसके लिए आपको एक्सटर्नल टूल चाहिए. मैं अगर ओके लेट्स सी, इसमें मैं अगर करूँगा रिट्राई तो ठीक है, रिट्राई तो सिंपल चीज़ है, रिट्राई मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ. द रेट लिमिट एंड बाल्क हेड, राइट, ये रेट लिमिट क्या करता है कि लिमिट द एपीआई कॉलिंग रेट, कितना सेकंड में कितना कॉल आपको अलाउड है. बाल्क हेड विल कंट्रोल द कॉन्करेंट कॉल, एक साथ कितना कॉल कर सकते हो, राइट, कि कितना थ्रेड फुल कितना है उस हिसाब से, राइट. ज़्यादा कॉल अगर कर दोगे तो इट विल नॉट अलाउ यू, राइट. ये दोनों टेस्ट करने के लिए आपके पास एक टूल होना चाहिए, एक्सटर्नल टूल या कोई टेस्टिंग टूल होना चाहिए जो आपको एक साथ पर सेकेंड में कितना रिक्वेस्ट जनरेट करेगा. दैट यू कैन डू इट, राइट. बट वी विल जस्ट टेस्ट इट द what we call the circuit breaker and open कैसे हो रहा है. Okay, let's see. So what you need to do, so for your convenient, मैं इसका बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए मैं पहले इसको लिख के रखा था. so सर्विस ए का ये सारे प्रॉपर्टीज, आई विल जस्ट टाइप इट, राइट. You can also, I think you will get uh, ये मैंने कमिट कर दिया, आई थिंक कमिट, यस, गिट कमिट है, तो मेरा जो गिटहब है उसमें से कॉन्फ़िगरेशन सर्विस ए का प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा. स्टिल आई विल, इफ यू आर यूजिंग सम, मतलब अगर एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास नहीं है, सर्विस बी भी नहीं है, तो लेट मी टाइप इट हियर सो यू कैन डायरेक्टली राइट इन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज. ठीक है, सर्विस ए में मैं सर्किट ब्रेकर यूज़ करना चाहता हूँ फॉर सर्विस बी. सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई नीड टू राइट इट, आई नीड टू फर्स्ट सर्विस बी में जाके मेरे को डिपेंडेंसी ऐड करना है, राइट. सर्विस ए में जाके मेरे को डिपेंडेंसी ऐड करना है. व्हाट आर द डिपेंडेंसी? दिस इज द डिपेंडेंसी आई नीड टू ऐड. दिस इज द सर्किट breaker resiliency 4J. Okay, I added this dependency. ठीक है, ये डिपेंडेंसी मेरे को ऐड करना है. स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर सर्किट ब्रेकर रेजिलेंसी 4J. ठीक है, ये डिपेंडेंसी में ऐड करने के बाद इफ आई रन दिस एप्लीकेशन, राइट, विद दैट थिंग, राइट, देन एटलीस्ट रेजिलेंसी हो गया. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स, हाउ दिस रेजिलेंसी कॉन्फ़िगरेशन आई नीड टू कीप. लेट्स रीड इट आउट. यहाँ से ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ नोटपैड से. ठीक है, ये जो फील्ड का नेम है ना, सबको बहुत ध्यान से देखना. ठीक है, देखो पहले सर्किट ब्रेकर का कॉन्फ़िगरेशन है. बेसिकली रेजिडेंसी 4J को क्या होता है, आपको हर एक सर्किट जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो उसका एक नाम देना पड़ता है, और उसके बाद उसका सारे प्रॉपर्टीज वैल्यू क्या रहेगा. ओके, सो दिस इज द थिंग, रेजिडेंसी सर्किट ब्रेकर कॉन्फ़िग्स, दिस विल बी द कॉमन थिंग. उसके बाद ये शेयर्ड इज द प्रोफाइल नेम, शेयर्ड इज नॉट समथिंग, राइट. एंड कैसे इस प्रोफाइल नेम को यूज़ करेंगे, मैं एक आई जस्ट क्विकली शो यू. ये देखो, यहाँ पे मैंने सर्किट ब्रेकर इंस्टेंसेस, फिर बैकएंड ए इज माय वन कैटेगरी ऑन ग्रुप ऑफ सर्विसेज, उसका बेस कॉन्फ़िग मैं शेयर्ड से उठाऊंगा. एंड व्हेन आई विल एनोटेट someone to use this configuration, how I will do, I will just write in this way. देखो सर्किट ब्रेकर नेम बैकएंड ए.
ठीक है, इसी तरीके से मैं लिखूंगा। तो बैक एंड ए जो है ये एक्चुअली मेरा रेजिडेंसी 4J का शेयर्ड जो प्रोफाइल है उसको यूज़ कर, शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेगा। एक मिनट, शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेगा बिकॉज आई एम मेंशनिंग हियर। ओके, सो बैक एंड ए जो है, ये जो इसका जो इंस्टेंस है, इट विल बेस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा शेयर्ड, एंड शेयर्ड के लिए मैंने इधर सब कॉन्फ़िगर कर दिया। थोड़ा 2 स्टेप आप है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द थिंग्स। रजिस्टर हेल्थ इंडिकेटर ट्रू है, ये छोड़ो। अभी मैं जो बोला था कि आपको सर्किट ब्रेकर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। सो सर्किट ब्रेकर दो तरीके से काम करते हैं, एक होता है टाइम बेस्ड, एक होता है काउंट बेस्ड। टाइम बेस्ड काउंट बेस्ड मतलब है, if you can see sliding window type is a count based. Okay, that means my circuit breaker will monitor on the count, it will work on the count based. How the count based will work? Sliding window size 4, it will trace, it will at a time, और जो भी है ये जो भी डिसीजन लेगा 4 कॉल में, कंसेक्यूटिव 4 कॉल के बीच में लेगा डिसीजन, ठीक है। ओके, दिस इज माई स्लाइडिंग विंडो साइज। स्लाइडिंग विंडो हो रहा है, ये एक्चुअली एक सर्कुलर एरे जैसा करता है, एंड जो भी एक सक्सेसफुल के बाद उसको आउटकम के बाद वो एडजस्ट करता है कि 4 हो गया तो 4 में डिसीजन लूंगा क्या होना है, ठीक है। इसमें मैंने बोल दिया कि चारों जो है उसमें से मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन 2 कॉल को ऐसे ही पास करो, फेल है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो, 2 चीज़ें, फेलियर रेट थ्रेशोल्ड। अगर फेलियर रेट थ्रेशोल्ड है 40% है, 40 मतलब यहाँ पे परसेंटेज, देन यू शुड मेक इट ओपन। दूसरा एक है स्लो कॉल रेट थ्रेशोल्ड, अगर 50% है, स्लो कॉल रेट आ रहा है, एंड स्लो कॉल कैसे मैं बोलूँगा, स्लो कॉल ड्यूरेशन थ्रेशोल्ड 4 सेकेंड। कोई कॉल अगर 4 सेकेंड से ज़्यादा ले रहे हैं देन इट विल बी द स्लो कॉल, एंड इफ द स्लो कॉल थ्रेशोल्ड इज 50%, 50 मतलब आउट ऑफ दिस 4 कॉल, इफ 2 से ज़्यादा हो गया, राइट, यू शुड मेक इट ओपन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा परमिटेड नंबर ऑफ कॉल, सो ओपन में रहेगा। उसके बाद वेट ड्यूरेशन इन ओपन स्टेट, कितना टाइम ओपन में रह सकता है, 3 सेकेंड ओपन में रह सकते हैं, ओके। एंड परमिटेड नंबर ऑफ कॉल्स इन हाफ ओपन स्टेट, हाफ ओपन स्टेट में 2 कॉल अलाउ करेगा, 2 कॉल के बाद इट विल ऑटोमेटिक transition from open to half open enable. Okay, this is the yes, so ये ट्रू करना पड़ता है। सो ओपन में जाने के बाद ओपन से डायरेक्ट हाफ ओपन में जाएगा, हाफ ओपन से 2 कॉल अलाउ करेगा, 2 कॉल के बीच में वो देख लेगा कि 50% 50% इज गेटिंग सक्सेस और नॉट। इफ इट इज गेटिंग सक्सेस इट विल अगेन गो बैक टू द ओपन स्टेट, राइट। मतलब अगर सही चला कि तो थ्रेशोल्ड है, फेलियर रेट या जो टाइम आउट रेट है इट इज बिलो द थ्रेशोल्ड, right, then it will move to the closed. If it is above the threshold it will move to the open state again, ठीक है। रिट्राई कन्फिग कितना बार रिट्राई करना है, ठीक है, 3 बार रिट्राई करना है। वेट ड्यूरेशन, एक कॉल के बीच में 100 मिलीसेकेंड का गैप होना चाहिए, दिस इज द वेट ड्यूरेशन, ओके। एंड रिट्राई एक्सेप्शन, किस एक्सेप्शन में रिट्राई करना है, if client is showing give me this exception, so if you can see these are the HTTP server error exception, timeout exception, IO exception, ठीक है। now as well I was giving the bulkhead, this is the thread pool bulkhead config। यहाँ पे आप max thread pool size 4, maximum at a time 4 रिक्वेस्ट हो सकता है। कोर थ्रेड पुल साइज इज 2, क्यू कैपेसिटी में 2 बैठेगा, मतलब एट ए टाइम 2 काम, मतलब your if you understood the executor pattern, the similar thing, right। here what is happening, I am saying कि मेरा थ्रेड पुल साइज 4 है और मेरा जो थ्रेड पुल का कोर थ्रेड पुल साइज 2 है, 2 ऑलवेज अवेलेबल होगा, मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं, एंड क्यू में 2 लोग बैठ सकते हैं, बाकी कोई रिक्वेस्ट को मैं लूँगा ही नहीं, ठीक है। एंड दिस इज माई रेट लिमिटर। रेट लिमिटर में क्या बोला कि रेट लिमिटर में ये बोला कि मेरा लिमिट पीरियड इज 10, लिमिट रिफ्रेश पीरियड इज 1 सेकेंड, एंड टाइम आउट ड्यूरेशन 0। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरे 1 सेकेंड में 10 रिक्वेस्ट मैं ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा आएगा तो आई विल नॉट टेक इट, कोई एक्सेप्शन, उसका एक्सेप्शन मिल जाएगा, ठीक है। then these are the things I need to write in the application.properties file, right? And after that what I need to annotate with circuit breaker name is backend A, bulkhead backend A, rate limiter backend A. I can also type the retry,
ठीक है, retry, which is the name is the backend है. I will not type it as of now. Retry मैं retry करूँगा तो दूसरा कुछ आ जाएगा. Let's taste it. ठीक है. Anyone is doing so? I'll just wait for you. किसको टेस्ट करते हैं? Yes, no. ठीक है. Let me test it. Okay. So दिस इज़ द थिंग, बट अभी सर्विस बी में कुछ एक्सेप्शन तो नहीं है, तो मैं सर्विस बी को टेस्ट करने के लिए मैंने उधर कितना सेकंड दिया, टाइम आउट 4 सेकंड दिया, राइट. तो सर्विस बी में मैं एक स्लिप डाल देता हूँ 6 सेकंड का. लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग. तो यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप करके एक 6 सेकंड का एक स्लिप मोड डाल दिया. ठीक है, सर्विस बी को रिस्टार्ट करते हैं. एंड सर्विस ए को भी करना पड़ेगा. If you want to read more about the Resilience 4G, there is one document, right? मतलब इसका तो सही से कोई ऐसा ये नहीं है. So whatever I have learned by reading this document, you can just take a look. Even जो picture है वो भी मैं यहाँ से लिया था, right? So this is the thing. Okay. Let me ping you that document link, right? Okay, service A is running. सर्विस बी का 2 इंस्टेंस है, तो सर्विस बी में तो अलग अलग राउट होगा, तो एक इंस्टेंस को बंद कर देते हैं, राइट. नहीं तो इट विल हैव ए इनकन्सिस्टेंस. या सर्विस बी का 2 अलग अलग इंस्टेंस को, 2 अलग अलग इंस्टेंस फिर से एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं. देन लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग. ठीक है, अभी ये इंस्टेंस रन होने तक हम टेस्ट कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ माय एक्सपेक्टेशन, बताओ. मेरे को 4 कॉल को ट्रेस करना है, उसमें से मिनिमम 2 कॉल अलाउ होगा. 2 कॉल के बाद अगर मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगा, राइट, 50%, बिकॉज मेरा हर एक कॉल के लिए 6 सेकंड का मैंने डाल दिया, तो 4 सेकंड तो टाइम आउट होगा, राइट. वो कुछ टाइम 3 सेकंड ओपन स्टेट में वेट करेगा, फिर इट विल गो टू द हाफ ओपन स्टेट. हाफ ओपन स्टेट में 2 कॉल को अलाउ करेगा, 2 कॉल्स में से दोनों ही टाइम आउट होगा, फिर से वो ओपन स्टेट में चला जाएगा, राइट. ये सुनो, ये हमको टेस्ट करना है, राइट. ओके, सो लेट्स सी what I am going to test it. So now let's go to the service A. See the service A से ही करते हैं. You can also do from gateway, but service A से ही करते हैं. 60,004 API v1. This is my service A endpoint. If I run this endpoint, it will take some time. ठीक है, फर्स्ट कॉल गया, 6 सेकंड के बाद आएगा. ओके, इट टुक मोर देन 6 सेकंड, 8.32 सेकंड, विच इज़ फाइन. फर्स्ट कॉल ट्रेस हुआ. ठीक है, सेकंड कॉल गया, right, it is coming 6.05 second. Now the third call, circuit should be closed. पहले देख लेते हैं सर्विस ए में कुछ, सर्विस ए की तरह सर्विस ए में कुछ आया नहीं, कुछ नहीं आया. ठीक है, कोई नहीं. ठीक,
एक मिनट रुको, I did some configuration wrong. Hold on, let me take it. ठीक है, which is good. देखते हैं क्या दे रहा है. सर्किट ब्रेकर बैकएंड इज ओपन, डजंट परमिट फर्दर कॉल्स. ठीक है, उसको मैंने बोल दिया था कि 2 मिनिमम कॉल देना है, उसके बाद वो सर्किट सर्किट को ये करना है. सो दैट्स व्हाट इट इज़ हैपनिंग. 2 तो पास ही किया, उसके बाद 2 के लिए वो ऑब्जर्व किया. तो एक्चुअली मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन वो बहुत ही कम है, इसीलिए जस्ट फॉर द थिंग्स. सो 2 को मिनिमम वो अलाउ करना ही है उसको, उसके बाद 2 को कैप्चर करेगा. 2 में फेलियर आया, राइट. उसके बाद उसने सर्किट को ओपन कर दिया. अभी ओपन में कितना टाइम रहेगा, कुछ टाइम रहेगा, 3 सेकंड रहेगा. मेरा शायद ये बात करते करते 3 सेकंड निकल गया. नेक्स्ट वो क्या करेगा, मेरा सर्किट अभी होगा हाफ ओपन स्टेट में. ओके, ये सुन लो. यस, नहीं, फेलियर फेलियर हो गया 2 कॉल्स के नहीं. मैंने सेकंड, कुछ सेकंड वो ओपन स्टेट में रहता है, उसके बाद वो हाफ ओपन में आ जाएगा. 3 सेकंड यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर किया ना, ये देखो आपने इधर कॉन्फ़िगर किया कितना सेकंड उसको. वेट ड्यूरेशन इन ओपन स्टेट 3 सेकंड. ओके, ओपन स्टेट में इन्फाइनाइट नहीं रह सकता. ओपन स्टेट में उसको 3 ही सेकंड रहना है. उसके बाद ऑलवेज वो हाफ ओपन में चला जाएगा. एंड हाफ ओपन में अभी चला गया हाफ ओपन में. हाफ ओपन में क्या करेगा, आपको प्री कॉन्फ़िगर नंबर ऑफ कॉल्स को वो अलाउ करेगा. दैट मीन्स 2 कॉल को अलाउ करेगा. लेट्स सी, 1 कॉल 2 कॉल. ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो इट विल गिव द एक्सेप्शन, क्योंकि फिर से ओपन हो गया. फिर से ये देखो किधर है, सर्किट ब्रेकर बैकएंड इज ओपन, कॉल क्रिएट कॉल नॉट परमिटेड एक्सेप्शन. ठीक है, ऐसे चलता रहेगा. राइट, जब मेरा सर्विस बी अगर खुद रिकवर कर लेगा, थ्रेड डॉट स्लिप करके मेरा खुद रिकवर कर लेगा, देन इट विल बी. और मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ. देखो अभी सर्विस बी, ठीक है, सर्विस बी को अभी निकाल देते हैं और इस सर्विस बी को रीरन करते हैं. सर्विस बी का दोनों इंस्टेंस को मैंने रिटर्न कर दिया विथ रिमूविंग द 60,000. सर्विस ए को भी पता ही नहीं, सर्विस ए को मैं कुछ नहीं करूँगा, उसमें सेम सेटअप रहेगा ना. अभी थ्रेशोल्ड नहीं आएगा, अभी देखो ऑटोमेटिकली वो क्लोज्ड हो जाएगा एंड इट विल नॉट गिव एनी एक्सेप्शन. उसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा. ठीक है, इट इज रनिंग ऑन द 60,005. Let's see. Hold on, what it is giving? No services up till. एक मिनट, where is my gateway? आ गया ना, सर्विस ए सर्विस बी दोनों आ गया. Now I want to set it. अब अभी अब कुछ भी करो, देखो वो हमेशा क्लोज स्टेट में ही रहेगा. मैंने कुछ चेंज किया, सर्विस ए में कुछ चेंज किया.
Okay. ठीक है, understood how it is working. Now the bulkhead and rate limit you can test, we can test it some tool. मैं वो tool का देखता हूँ, मैंने वो explore नहीं किया कि tool कोई भी, but you can easily consider this thing. But whatever you are trying to achieve, right, this is the thing, right? So using the circuit breaker you can consider, you can at least preempt the failure. And one more thing, just last thing, I'll just show you. In the circuit breaker you can have a fallback option. Okay, how this fallback option work, let me take a look. Let me show you from the documentation how it is showing, right? So if you can see the circuit breaker, right, it will have a, where is the fallback? Okay, now it will have, if you want to know more about this thing, right, for the set, well, context set, I just gave you the idea how it is working. But if you are trying to explore this thing, you can explore their example code, everything is there अवेलेबल. ओके, आपको सिर्फ ये देखो, फॉल बैक में क्या करता है कि आपको रिट्राई एंड नहीं, सो सर्किट ब्रेकर में आप फॉल बैक मेथड नाम दे दो फॉल बैक, देन फॉल बैक शुड बी वन things you can just give it. Okay, so here I will just, what I will do, I will, sorry, so sorry, public, so it will be my, I'll just give me the, I'll just write fallback. ठीक है, let's see what is happening. And here in the circuit breaker I'll mention fallback method is equal to fallback. ठीक है, everyone is good. मैं इसको सर्विस ए को रिस्टार्ट करता हूँ, सर्विस बी में फिर से मैं स्लिप में डाल देता हूँ, देन आई थिंक सर्विस ए, सर्विस बी, सर्विस बी को भी स्टॉप रिटर्न करता हूँ. ठीक है, let's wait for few seconds, it will be done, then we will test it.
Okay, this is the service A, service B, both are running. Okay, let's see what is happening. ठीक है, अभी फिर से देखते हैं. पहली बार गया, मेरा 6 सेकंड का डिले होगा. रुको, अभी आप नहीं है. सर्विस एक्स्ट्रा, ठीक है. थोड़ा बहुत रिफ्रेश करते हैं. क्यों आ रहा है एक्सेप्शन, क्यों आ रहा है? व्हाट इज द एक्सेप्शन? फॉल बैक क्या बोला? नो सच मेथड एक्सेप्शन. ओके, फॉल बैक का स्पेलिंग मिस्टेक है. रुको, एक्सेप्शन आया. ऐसे कैसे? कंट्रोलर फॉल बैक FALL BAC के सही तो है. पब्लिक फॉल बैक. एक मिनट रुक जाओ, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है देख लेते हैं. One they are mentioning in the document. Okay, it's important to remember that Folgate methods should have placed in the same class and must have the same method signature with just one extra target exception parameter. Okay, so मैं इसको इसीलिए उसको नहीं मिल रहा है. फॉल बैक सेम सिग्नेचर होना चाहिए फॉल बैक का, गेट पोर्ट का. सिर्फ मेरा एक एक्सेप्शन पैरामीटर ऐड होना चाहिए. ओके, दिस इज द रन टाइम एक्सेप्शन आई शुड गिव. पोर्ट में तो मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, विच इज़ फाइन. चलो, अरे सर्विस बी को मैं क्यों रिस्टार्ट कर दिया? सर्विस ए को रिस्टार्ट करना चाहिए. सॉरी, क्या लग रहा है यार? रेजिलेंसी 4J डिफिकल्ट है? स्नेह क्यों नहीं चलेगा? बट फॉलबैक में आप चीज़ दे सकते हो क्या? वॉट एवर यू आर लुकिंग. बाल्कहेड, रेट लिमिट, दैट इज योर एप्लीकेशन. कि आप एप्लीकेशन को इतना सिक्योर बनाना चाहते हो. पहली बार एक चीज़ सोचो, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, पहले एक बार फीडबैक ले लो. तो स्नेहल बोलो, क्या हाउ हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर नोइंग अबाउट द रेजिलेंसी 4J? ठीक है, ग्रेट. नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू फ्यू मोर थिंग्स. पता है ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम लोगों को जो जब भी सर्किट ब्रेकर, ये जब क्रिटिकल टर्म यूज़ करते हैं ना, हम बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं क्या होगा यार. मतलब क्या क्या नहीं हो सकता है. ठीक है, बट ये रेजिडेंसी पूरी इतना सिंपल है कि हमको बिलीव नहीं होता है. क्या 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 मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा काम कर रहा है. हाउ इट इज़ हैपनिंग, राइट? बट थिंक अबाउट इट. इफ आई एम टेलिंग यू कि आपको एक एप्लीकेशन चाहिए, जिस एप्लीकेशन में मेरे को रेट लिमिट चाहिए, 100 सेकेंड में मेरे को 3 ही कॉल अलाउड होगा.
आप एक बार सोचो तो आप कैसे कोड करोगे. जस्ट थिंक अबाउट इट. Think about it, then let me know. पहले ये वेट किया 9 सेकेंड. अभी शायद देखते हैं क्या होता है. 6 सेकेंड. फॉल बैक. 3 सेकेंड पार हो गया. फिर से एक बार ट्राई करेगा. 2 बार ट्राई करेगा. अप ओपन स्टेट में है अभी. फॉल बैक. क्लियर है. ठीक है. Okay, now coming back to the question, so I think we are done on the coding part, right? I'll upload this code now, so you will get everything whatever you need. Hit commit. ऐसा कुछ है नहीं. चलो, I'll just give you circuit breaker. ठीक है. मैं पहले जब रेजिडेंसी 4J पढ़ा था, मैं आई वॉज वेरी इन शॉक कि मैं इसको कैसे समझूंगा और समझने के बाद कैसे इसको मैं कोड करूंगा एंड कैसे उसके बाद मैं समझाऊंगा. द थर्ड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी को मैं ट्रेनिंग कैसे दूंगा इसके बारे में, राइट. देन आई थिंक लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग.